Welcome you back, students. Uh, we're almost to the last part of the challenges of the nation building. Previously, already I talked about the integration of the princely states and making of the Indian Union, the Indian federal structure. You know that India is a union of states and territories, or that's otherwise known as union territories. So, how the present form of the states today you are having around 28 states and 8 union territories, and at the time of the independence the situation was something different. So how right from 1951 till 2020, how these changes being taken place, this is otherwise known as reorganization of states, because at that time the British administration, the state boundaries being demarcated in a different way on the basis of their own princely states or on the basis of their own territories. So the territories was not being defined, or the states were not being defined on the basis of language, culture, or something like that, right? But in the post-independent era, the reorganization of the state has to be made, because you wanted to make administrations easier, right? For the administrative convenience, and at the same time, you wanted to make a smaller unit of states so that the administration could be a little bit easier for the federal government. So the reorganization of the states, this plan was being made by the central government, and the State Reorganization Act 1956 was a major reform of the boundaries of India's states and territories. Territories means union territories, organizing them along the linguistic line. Initially, linguistic line means on the basis of the language. Think about if a particular state, suppose उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट होता जहाँ पे बंगाली स्पीकिंग भी हैं लोग, कुछ बंगाली स्पीकिंग एरिया है, कुछ हिंदी स्पीकिंग एरिया है, कुछ तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ द आपका जो स्टेट का लैंग्वेज क्या होता, कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाया जाता क्लास में, स्कूल में, एंड सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कौन सा लैंग्वेज में चलता. सो दिस आर ऑल द डिफिकल्टीज यू कैन से यू कुड हैव फेस्ड. दैट्स व्हाई स्टेट को कोशिश किया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज और द लिंग्विस्टिक डिमार्केशन किया जाए. इट मीन्स वेस्ट बंगाल मीन्स बंगला स्पीकिंग स्टेट, ओडिशा मीन्स ओडिया स्पीकिंग स्टेट, राइट, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटक कन्नड़ स्पीकिंग स्टेट, राइट, केरला Malayalam speaking states, like that, Maharashtra Marathi speaking states, like that, on the basis of the language the state being demarcated. Initially it was being opposed by the members of parliament and so many, I can say, people, those who believe in constitutions, but later on it was being accepted. The act came to an effect at the same time as the constitution through 7th Amendment Act in 1956 restructured the constitutional framework for India's existing states, and the requirement to pass the States Reorganization Act 1956 under provision of Part 1 of the Indian Constitution's Article 3 and 4. On the basis of that, this particular amendment of the act being enacted. The Article 1st of the Indian Constitution says that India, that shall be the state of that constitute the states and the territories, means states and the territories मिला के एक इंडिया बना हुआ है. सो उस स्टेट को रीडिमार्केशन करने की बहुत सख्त जरूरत था, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस जो मिला था उसके हिसाब से हम आगे नहीं चल सकते थे. सो ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक लाइन उसको डिमार्केशन किया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 distinguished the states in 3 major divisions, generally 4 major divisions, but 4 divisions, but 3 major divisions. Part A states which were former governors province of British India, जो फॉर्मर ब्रिटिश गवर्नर थे या वाइसरॉय उसके अंडर में आते थे, वे रूल्ड बाय द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स. इंडिया में जब आ गया तो ये प्रेसिडेंट प्लस इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स बनाया गया. द 9 पार्ट ए स्टेट्स वर लाइक असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, अदरवाइज नोन एज सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, दैट्स नोन एज ईस्ट पंजाब, Uttar Pradesh, that's known as United Provinces, and West Bengal. This comes under Part A category of state. Part B category of state, which were formerly generally the princely states. ये जो ग्रुप था ये जनरली एक princely states का ग्रुप हुआ करता था. You know that about 562 princely states were there, and उनको गवर्न करने वाले कौन होते थे? राज प्रमुख, राजा महाराजा का जो
रिप्रेजेंटेटिव होता था, राज प्रमुख उनको गवर्न करने वाले थे, गवर्न करते थे भी उस टाइम, वॉज यूजुअली द रूलर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर, साथ में इलेक्टेड लेजिस्लेचर भी हुआ करता था। जैसे आज आप देखेंगे कि एंटायर ऑल द स्टेट्स 28 स्टेट्स हैविंग देयर ओन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। एज पर द नीड धीरे धीरे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर करके उसको चेंज कराए गए। सो एट दैट टाइम जो स्टेट बी कैटेगरी के थे, राज प्रमुख हुआ करते थे एज द प्लेस ऑफ द गवर्नर। जैसे स्टेट पार्ट ए कैटेगरी में क्या हुआ होता था, गवर्नर होते थे एंड स्टेट असेंबली होता था। पार्ट बी कैटेगरी में क्या था, राज प्रमुख गवर्नर की जगह पे एंड स्टेट असेंबली होगा, एंड द राज प्रमुख वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे वहां गवर्नर, यहाँ पे राज प्रमुख। द 8 पार्ट बी स्टेट्स वेयर, कौन कौन सा है, हैदराबाद, JNK, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन दैट्स नोन एज PEPSU, राजस्थान, सौराष्ट्र एंड ट्रेवंकोर कोचिन। These are all this, remember in my previous video I talk about all these things। ये सब कभी ना कभी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। सो वो कैटेगरी नंबर बी में आया। कैटेगरी नंबर सी में क्या है, लेट्स सी। सी कैटेगरी का जो स्टेट्स हुआ करता था, इट इंक्लूडेड बोथ द फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड सम प्रिंसली स्टेट। उसमें कुछ ऐसा है जिसमें कि चीफ कमिश्नर रूल किया करते थे स्टेट्स को गवर्नर की जगह पे, एंड कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी था, and each was governed by a chief commissioner appointed by the president of India। It means जो प्रेसिडेंट का आज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में होता है, कौन है, गवर्नर होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज में होता है, गवर्नर स्टेट में होता है। उस टाइम क्या होता था, गवर्नर होते थे उस टाइम, राज प्रमुख होते थे उस टाइम, एंड चीफ कमिश्नर होते थे। ये 3 कैटेगरी का लोग गवर्नर के जगह पे हुआ करते थे। एट द सेम टाइम दे आर हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर आल्सो, राइट। सो पार्ट सी कैटेगरी में 10 स्टेट्स हुआ करते थे। द 10 पार्ट सी स्टेट्स वर लाइक अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोर्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश। इसमें से बहुत सारे चीज़ हमें अभी को पता ही नहीं है। अजमेर नाउ द पार्ट ऑफ राजस्थान है, भोपाल द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बिलासपुर द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, दिल्ली अलग हो चुका है, हिमाचल प्रदेश अलग स्टेट होता है, कच्छ बिंग पार्ट ऑफ गुजरात, मणिपुर अलग स्टेट है, त्रिपुरा अलग स्टेट है, विंध्य प्रदेश बोल कैसे। सो दिस आर ऑल द स्टेट्स बीइंग क्रिएटेड इन पार्ट सी कैटेगरी, एंड द ओनली पार्ट वाज लेफ्ट इन पार्ट डी, इसलिए उसको मेजर पार्ट में नहीं ली जाती है। दैट्स व्हाई इट्स बीइंग 3 कैटेगरी का स्टेट्स हुआ करते थे, 3 मेजर कैटेगरी का स्टेट बट 4 कैटेगरी होते थे। द सोल पार्ट डी कैटेगरी वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि आज भी टेरिटरी है, उस टाइम भी टेरिटरी, which were administered by the lieutenant governor appointed by the central government or the president of India। So on the basis of this, if you can see that in 1965 जब reorganization committee बना, स्टेट reorganization committee बना, उनके सामने ये challenges था। ये 4 कैटेगरी का स्टेट हुआ करता था 1947 से लेके 1960 तक, 50s के लास्ट पार्ट तक, 60 तक यही कैटेगरी का स्टेट्स चल रहा था। और इसी कैटेगरी को स्टेट्स को उनको एक नए स्ट्रक्चर देना होगा आगे जाके, ताकि उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक लाइन पे ये सब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत था, सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगा एंड बाकी चीज में उनको सुविधा होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन।